Hello guys. Friends, today we are going to start with a very important topic. See, I have completed your electrochemistry, okay? I hope you must have gone to all my 7 to 8 lectures videos and numericals part. So we are going to start with a very important topic, that is chemical kinetics, okay? Now, it's a very important topic, very simple topic, right? And related to your 11th standard, some connected part will come. If you remember, we have studied in our 11th standard chemical equilibrium topic. Okay, some of the terms I'm going to use in this. Now, first let us understand what is this chemical kinetics will deal with. Okay, so now see, you must have studied thermodynamics. Okay, now what is thermodynamics? Thermodynamics gives the feasibility of the reaction, right? Entropy gives energy, whether the reaction will take place or will it not take place. So it gives the feasibility of the reaction. But thermodynamics does not give the stages of the reaction. It gives only the initial and the final state. We study heat, हमने initial state में कितना लिया, final state में कितना हुआ. तो बस state function if you remember. So it was dealing thermodynamics of feasibility, whether taking place or not. Initially हुआ, finally मालूम पड़ा कि नहीं difference क्या energy का. But it never gives the stages, right? The steps in which the reaction is taking place. So chemical kinetics. See, kinetics means speed. In physics, speed means rate of the reaction. So what does kinetics say? Chemical kinetics will deal with. Let us understand what we are going to study in this topic first. In this topic, we are going to study, okay, chemical kinetics will deal with chemical kinetics. CK. Chemical kinetics deals with the speed or the rate of reaction and the factors affecting it and the mechanism by which it takes place. Okay, so chemical kinetics deals with the, see, very important term, the speed or the rate of the reaction, factors affecting it and the mechanism. Okay, factors affecting it, like you must be knowing it about the temperature, pressure, all that. I'm going to deal with that. The conditions and the mechanism. See, some of the reaction takes place in a single step, that is called as elementary reaction, and some reaction takes place in multiple steps. Thermodynamics, Hess law, you must have studied. So we are going to study the stepwise. So in this topic entirely kinetics, kinetics deals with the speed or the rate of the reaction. And rate of the reaction अगर मैंने बोला तो फिजिक्स में एक ही चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, the time related. Time आपके दिमाग में आएगा. So chemical kinetics deals with the rate of the reaction and the factors and the mechanism affecting it. Why? Because see, some of the reaction takes place very fast, instantaneous takes place, like forming a reaction of AgCl, right? Precipitate. Some of the reaction takes place very, very slow. For example, like hydrogen reacting with oxygen at room temperature. Very slow reaction. Some reaction takes place at a moderate reaction. Okay. So there are decomposition of hydrogen peroxide. Slowly decompose होगा. Corrosion हमने पढ़ा हुआ है electrochemistry में. So what happened in that case में, तो कितने speed में हो रहा है, कितने time period में हो रहा है rate, that we are going to study in this topic. तो पूरे topic में आप एक चीज दिमाग में रखो, the rate related means the time related speed of reaction. अच्छा, 11th स्टैंडर्ड में केमिकल काइनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा वो देखो. अभी खाली मैं जैसे आइडिया दे रहा हूं कि 11th स्टैंडर्ड में अगर आपको याद होगा तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसे पढ़ा था, अगर इफ यू रिमेंबर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वाज डिक्रीजिंग, प्रोडक्ट वाज इंक्रीजिंग, और यहां पर एक इक्विलिब्रियम आता है. याद आया ये ग्राफ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, CR एंड CP, और यहां पर एक इक्विलिब्रियम आता है. ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द रिएक्शन समवेयर और इन एनी टाइम. यहां पर हम कंप्लीट रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे. कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, मैं कैसे बता रहा हूं. पहले टर्म्स याद रखना. देखो, फॉर एग्जांपल सपोज इफ आई राइट A प्लस B बन रहा है C प्लस D. ठीक है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल. तो B क्या हो गया आपका? रिएक्टेंट्स हो गया. CD क्या हो गया आपका? प्रोडक्ट्स हो गया. अच्छा, अब मुझे वो नहीं चाहिए. इंपॉर्टेंट क्या है देखो, अब मैं सपोज अगर आगे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d सब लिखता हूं इसके आगे, तो व्हाट आर द स्मॉल a b c d? मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट आर द स्मॉल a b c d? मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली ये आपका हो गया CR और ये हो गया आपका CP.
मैं एक ही बार आपके लिए लिख देता हूं, देखो ब्रैकेट में लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कभी स्क्वायर ब्रैकेट में इफ यू नो, तो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो देखो सीआर कम होता है, सीपी बढ़ता है, इक्विलिब्रियम आता है। ये आपका सीआर एंड सीपी था, ये बार बार यूज करके। अच्छा, ये आपके 11th स्टैंडर्ड का था। नाउ इन माय दिस वाज योर 11th स्टैंडर्ड, मैं ऐसे लिखता हूं। नाउ अब 12th का ग्राफ कैसे आएगा? अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक रफ ग्राफ खाली अभी बनाता हूं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो व्हाट विल हैपन, ये देखो ऐसे सीआर पूरा कम हो जाएगा, सीपी पूरा इंक्रीज होगा। तो सीआर देखो कम हो रहा है एज पर द टाइम, रिएक्टेंट एकदम नेग्लिजिबल होता है। आई विल नेवर से दैट रिएक्टेंट एकदम जीरो हो जाएगा, रिएक्टेंट कम होगा नेग्लिजिबल, और प्रोडक्ट मैक्सिमम बन के रेडी हो जाएगा। सीआर और इक्विलिब्रियम यहीं कहीं बीच में आएगा, यहां कहीं पे इक्विलिब्रियम इन बिटवीन आएगा। तो ये 12th स्टैंडर्ड का आपका ग्राफ है, ये मुझे पढ़ना है इंपॉर्टेंट, ये 12th स्टैंडर्ड का सीआर एंड सीपी का ग्राफ। गॉट इट वेरी क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का एनी डाउट? आगे बताता हूं, अभी बहुत कुछ बताना मुझे बाकी है। तो पहले सीआर याद रखो, सीपी याद रखो, स्क्वायर ब्रैकेट में हम कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे। तो रेट, इसकी स्पीड के बारे में, टाइम के बारे में भी आगे डील विद दैट, ठीक है। अच्छा, आपको यह भी पता है कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल्स हो जाएगी, और इसकी यूनिट डीएम क्यूब हो जाएगी, मोल्स पर डीएम क्यूब, ठीक है। अच्छा, रेट क्या होगा? रेट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, बराबर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका हो गया मोल्स पर डीएम क्यूब, पर ना -3, और टाइम टी ले लेते हैं, टाइम को हम सेकेंड्स भी ले सकते हैं, ठीक है। टाइम को हमेशा हम सेकेंड्स में लेंगे, तो हम लिखेंगे सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो गया? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। देखो ये हो गया आपके रेट का यूनिट हो गया, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। देखो एकदम सिंप्लीफाई करके मैं आपको दे रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, सो मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड हो गया, देखो, ठीक है। ये रेट का यूनिट हो गया। तो हम रेट कैसा बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन का मैं डेफिनेशन आपको सब करने देने जाऊंगा। तो आई रिपीट, केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द रेट ऑफ द रिएक्शन। फैक्टर्स हम बाद में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म हम सब बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स। तो मैंने बोल दिया रिएक्टेंट्स अभी नहीं बोलने का, अभी बोलने का सीआर। सीआर मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सीपी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, 11th में हमने इक्विलिब्रियम मिडिल तक पढ़ा था, अब हम उसके आगे एंड तक पढ़ेंगे, रिएक्शन कब तक खत्म होता है। तो ये 12th का ग्राफ अपने को एंड तक अपने को पढ़ना है, ठीक है। ये 12th का ग्राफ है, अपने को एंड तक पढ़ना है पूरा, सीआर एंड सीपी का। ठीक है, पूरा 12th तक अपने को पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। इसका मैंने मर्ज नहीं किया देखो ग्राफ, बिकॉज कभी भी सीआर जीरो नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा, और सीपी आपका ऊपर मैक्सिमम तक जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने रेट का यूनिट निकाला, देखो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम को लीटर, डीएम क्यूब हम लोग लेते हैं, 1 लीटर इज 1 डीएम क्यूब। सो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड हो गया। एनी डाउट? जस्ट चेक, फिर मैं इसके आगे बढ़ू। अच्छा, ये भी आप याद रखो, इसको अगर हम बात करेंगे मोल्स पर डीएम क्यूब की बात करेंगे तो उसको हम मोलैरिटी भी बोलते हैं। यू नो मोलैरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी पर सेकंड भी बोलते हैं, ये भी आपने सुना है, ठीक है। मोल्स पर लीटर, वॉल्यूम को हम लीटर में भी लेते हैं, तो मोलैरिटी पर सेकंड। बड़ा एम बोलूंगा तो मोलैरिटी हो जाता है कैपिटल एम में, ठीक है। छोटा एम मोलैरिटी होता है, बट मोलैरिटी वेट में जाता है, तो मोलैरिटी पर सेकंड भी हम इसको बोलते हैं। चेक करो। अब आते हैं हम, अब आएंगे हम इसके ऊपर एक्चुअल, अब आएगा वेरी इंपॉर्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन। पहले लेकिन फॉर्मूला बनाऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन का मेरे को फॉर्मूला बनाने का, मेरे को रेट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन का, व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ठीक है गाइस, we'll define the rate of the reaction. Okay, now what will be the rate of the reaction? See, definition and all you will get from your textbook clearly, but I'll give you the entire explanation. See, the rate of the reaction will be
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ द रिएक्शन, बिकॉज लेटर ऑन वन मोर टर्म विल कम रेट लॉ. So first understand I am explaining you rate of reaction. Okay, it is d by dt of Cr. See what I am writing, Cr, or d by dt of Cp. Okay, so how we are going to define? See, the rate of the reaction is defined as the decrease in concentration of the reactant, decrease in concentration of the reactant per unit time, and increasing concentration of the reactant or per unit time. So how I am going to differentiate whether the reactant decreases or product? So mathematically we are going to put a sign convention minus and plus. See, minus will indicate that the reactant is there because it is decreasing. So decrease in concentration of the reactant, square bracket means concentration, per unit time. See, derivative. Why? You know, d by dt is derivative with respect to time. So what does that indicate? Derivative with respect to time, it indicates that the reaction is going slowly with the time. So it is decrease in concentration of the reactant, I repeat, per unit time, or increase in concentration of the product per unit time, or I can also write change in concentration of reactant or product. ठीक है, ये टर्म आप याद रखना. It is the change in concentration per unit time. ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. सो डी बाई डी टी ऑफ सी आर, डी बाई डी टी, बिकॉज इसके ऊपर आपने को न्यूमेरिकल एक करना है. दैट्स कॉल्ड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन. तो कैसे लिखना है आपको? सीधा डी बाई डी टी लेना है, उसका सी आर और सीधा सीपी लेना है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके हम एक्सप्लेनेशन लेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट ए वेरी सिंपल वन. सपोज आई विल राइट वन एग्जाम्पल, 2H2 प्लस O2 becomes 2H2. ठीक है, अब इसका मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन RR लिखना है मुझे. तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, d बाई डी टी ऑफ H2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है, और d बाई डी टी ऑफ O2, रिएक्टेंट का ही लेना है हमेशा, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है हमको. ठीक है, d बाई डी टी ऑफ रिएक्टेंट, d बाई डी टी ऑफ रिएक्टेंट, एंड ऑल्सो आई कैन राइट d बाई डी टी ऑफ H2. ठीक है, वाटर. रिएक्टेंट हो गया दोनों और प्रोडक्ट हो गया. अब रिएक्टेंट है तो हम क्या करेंगे? माइनस डालेंगे, इधर माइनस डालेंगे, इधर प्लस डालेंगे. ठीक है, और इक्वल टू के लिखा. इक्वल टू का मतलब तीनों इक्वल नहीं है, तीनों के रेट्स अलग अलग चल रहे हैं. देखो, जब हम रिएक्टेंट डालते हैं और प्रोडक्ट्स बनते हैं तो सबके रेट अलग अलग चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, चाय बनाना भी एक केमिकल रिएक्शन है. हम चाय पत्ती लेते हैं, पानी लेते हैं, शक्कर लेते हैं, दूध लेते हैं, तो हर एक अपने अलग अलग रेट से मिक्स होता रहता है, अलग अलग रेट से अपने डिकम्पोज होता रहता है पर यूनिट टाइम. तो सबके रेट अलग अलग है, इसलिए हम इक्वल टू लिखते हैं. इक्वल टू का मतलब है सबके अलग अलग हम रेट्स पकड़ रहे हैं. ठीक है, रिमेंबर दिस. सो डी बाई डी टी ऑफ H2 हो गया, डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और H2 हो गया. ठीक है, माइनस माइनस प्लस डाले. अब एक प्रॉब्लम है मोल्स का. मोल्स को क्या करना है आपको? आपको मालूम है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 में कम हो रहा है और वाटर 2 बन रहा है, और इसको मैं प्रूव करके दूंगा अपने रिएक्शन में. तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी मोल्स का लिखना है तो आप हमेशा लिखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 को 1/2 लिखोगे, क्योंकि टाइम इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिनोमिनेटर नीचे है. ये होगा 1/1 और ये होगा 1/2. वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर हाउ आई एम राइटिंग इट, वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आया कैसा लिखना है? सीधा डी बाई डी टी ऑफ रिएक्टेंट लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, और सीधा उसके मोल्स को 1/, के रेशियो में डालना. और ये मैं प्रूव करके दूंगा आपको, एक एग्जाम्पल में पूरा सॉल्व करके प्रूव करके दूंगा. सो 1/2, 1/1, 1/2. ठीक है, क्लियर हो गया क्या बोला? सपोज अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. ठीक है, सपोज मैं भी एक एग्जाम्पल आपको मैं इधर लिख देता हूं. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हो गया है, अनदर एग्जाम्पल 2 लिखता हूं मैं यहां पर. ये एग्जाम्पल 1 हो गया. ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, चलो अभी मेरे को एक काम करो, आप लोग को मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं. फॉर एग्जांपल एक वेरी सिंपल इक्वेशन था. 2C प्लस O2 बन रहा है, 2CO प्लस O2 बन रहा है, 2CO2. चलो इसका मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दो. चलो गाइस, तो फिर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. 2CO प्लस O2 बन रहा है 2CO2, 2CO प्लस O2 बन रहा है 2CO2. इसका मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दो. ठीक है, 2CO प्लस O2 बन रहा है 2CO2. इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दो मुझे. चलो आप अपने आप लिखो.
आर आर कैसे, डी बाई डी टी के फॉर्मेट में लिखो। हाँ लिखो। चलो ऐसा लगता है कि इंटरेक्शन लेक्चर ही हमारा चल रहा है। 2CO प्लस O2 बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 बन रहा है 2CO2। सिंपल इक्वेशन दे रहा हूं, तो डी बाई डी टी ऑफ CO, डी बाई डी टी ऑफ O2 कॉन्सेंट्रेशन, डी बाई डी टी ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन, माइनस माइनस प्लस, मोल्स को 1/2, 1/1, 1/2। देखो हुआ ऐसे लिख के चेक करो, जितने एग्जांपल्स आते दिमाग में देते फिर हम उसका रेट लिखेंगे हम। ठीक है, तो प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस। मैंने देखो क्या चालू किया था, मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताया, CR कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, CP बताया, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला बताया, रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, सो मोल पर DM³ पर सेकेंड, जिसको मोलैरिटी भी बोलते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रेट ऑफ द रिएक्शन आ गया, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, तो हम इसको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। और इक्वल टू का मतलब है सबके रेट्स अलग अलग हम पकड़ के चल रहे, किसके, रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के। सो डी बाई डी टी के फॉर्मेट में आया। ठीक है, तो डी बाई डी टी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे डिनोमिनेटर में हम मोल्स लिखते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ H2O2 H2O माइनस माइनस प्लस, हमेशा हमेशा माइनस दिया रहेगा तो समझ जाने का वो रिएक्टेंट है, और प्लस दिया रहेगा तो समझ जाने का प्रोडक्ट है, बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शन में लफड़ा होने वाला है कि रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन। सो माइनस जो दिया रहेगा डी बाई डी टी मतलब वो रिएक्टेंट है, ऑब्वियसली कम हो रहा है ना, देखो ना CR कम होता है और CP बढ़ता रहेगा पर यूनिट टाइम के हिसाब से। ठीक है, नोट करो ये पूरा सब। चलो फिर मैं इसके ऊपर एक टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में आप लोग को दूंगा, और उसके हिसाब से मैं आपको टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देने के बाद फिर मैं आपको दूंगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। So guys, we'll continue with the rate of the reaction. Okay, so I just now explained. So guys, we'll continue with the rate of the reaction. I have explained the example. Now we'll explain the go into the understanding part of the numerical part, and I'm going to prove that ratio, the moles वाला जो मैंने बोला। Once again, I'll give you one example. Then, for example, 2CO plus O2 forms 2CO2. ठीक है, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन RR, रेट ऑफ रिएक्शन हमने कैसे लिखा था, चलो मेरे को हेल्प करो, इसमें बता दो, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँ। यू नो वेरी वेल, वी आर रिटन माइनस डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एंड इक्वल टू प्लस डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 बराबर। अब इसमें हमने मोल्स कैसे लिखा था, 1/2, 1/1 और 1/2। ठीक है, अब इसको मुझे प्रूव करना है जो आपको मैं मोल्स का बोल रहा था। अच्छा, now let us take one assume one example. ठीक है, now what is given over here कि concentration of CO2 is let's say 20 मोलार। ठीक है, मैं आपको जेईई मेंस नीट का शॉर्टकट भी सिखाऊंगा पहले, लेकिन थ्योरेटिकली भी कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 20 मोलार है, आपको CO का एंड O2 का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन का निकालना है। ठीक है, तो सोल्यूशन हम पकड़ेंगे। अच्छा, यू नो वेरी वेल, ये जो CO2 है वो CO से आएगा और CO2 O2 से भी आएगा। ठीक है, मतलब CO2 में CO और O2 दोनों पार्ट ले रहा है। यू नो वेरी वेल, कोई भी प्रोडक्ट्स आपका सब रिएक्टेंट से बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देते कि अगर चाय बन रहा है तो चाय खाली अकेला दूध से नहीं बनेगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट जो चाय बन के रेडी होगा उसमें दूध का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, पानी का भी रहेगा, चाय पत्ती का भी रहेगा, एवरीथिंग इट विल बी देयर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि CO2 में CO भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और O2 का भी रहेगा, तो हम कोरिलेट कर सकते हैं वन रिएक्टेंट विद वन प्रोडक्ट। ठीक है, ये थ्योरेटिकली कैसे सॉल्व करना है देखो ध्यान से, मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो हम ऐसे पकड़ेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट में लेता हूं, डी बाई डी टी ऑफ CO विल बी इक्वल टू 1/2 डी बाई डी टी ऑफ CO2 1/2। ठीक है, अच्छा इसमें माइनस प्लस नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि देखो आंसर कभी भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। माइनस प्लस तो हम इसलिए लिखते हैं कि वो इंडिकेशन देता है कि वन ऑफ द थिंग इज रिएक्टेंट एंड अदर थिंग इज प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? सो न्यूमेरिकल में हम कभी भी माइनस प्लस नहीं लिखते, वो तो सिर्फ एक साइन कन्वेंशन होता है। सो हमने लिख दिया रिएक्टेंट का हाफ CO2 और प्रोडक्ट का लिख दिया हाफ CO2 लिख दिया और इधर CO लिख दिया। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO। तो देयरफॉर डी बाई डी टी ऑफ CO विल बी इक्वल टू, ये 2 उस तरफ जाएगा, ये 2 उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 डी बाई डी टी ऑफ CO2। देखो थियोरेटिकली पूरा सॉल्व है, 2 गेट कैंसल, तो डी बाई डी टी ऑफ CO2 बचेगा।
और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 20 मोलार। सो आंसर ऑफ CO विल बी 20 मोलार। ठीक है, मैं एक वर्ड भी आपको दूंगा जो आपके बार बार फ्रीक्वेंटली टेक्स्ट बुक में आता है। तो देखो CO2 का CO का कॉन्सेंट्रेशन भी 20 मोलार है। अब सेकंड पार्ट लेता हूं मैं। अभी O2 को कोरिलेट करूंगा इसके साथ, तो मैं कैसे करूंगा इसमें अंदर 1/1 ऑफ d/dt ऑफ O2 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ d/dt ऑफ CO2 बराबर। सो देयरफॉर अभी इधर देखो कुछ बन जाएगा नहीं, तो ये हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, राइट, हाफ ऑफ ये हो जाएगा 20 मोलार। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 मोलार। ठीक है, देखो पहला आंसर आपका आ गया 20 मोलार और दूसरा आंसर आपका आ गया 10 मोलार। तो CO का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 20 और O2 का आ गया 10 मोलार। अब मैं आपको जेईई मेंस नीट का शॉर्टकट सिखाता हूं। हम मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट आपको याद है ना, देखो एकदम शॉर्टकट में ऐसे प्रूव करता हूं। CO, O2 और CO2 था, क्या रेशियो था इसका 2:1:2 था, बराबर ना, 2:1:2 था, 2:1:2 था। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने क्यों ये मोल्स लिया, देखो ये 1/2 लिया मैंने, तो ये 1/2 प्रोडक्ट में लिया क्योंकि डिनोमिनेटर में था dt आपका, तभी देखो आंसर अगर 20 और 10 आया। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसा होगा, दिस इज फॉर योर एंट्रेंस, ये सिंबल मेरा एंट्रेंस करेगा। तो देखो अभी CO2 का 20 मोलार था, ठीक है 20 मोलार था। अब आप देखो जब CO2 2 था तो CO भी 2 था, ठीक है, थोड़ा ये इस पे आ गया, मैं ऐसे लिख देता हूं। ये आपका था 20 मोलार, ये आपका था 2। देखो अभी क्या था, जब CO2 2 था तो रेशियो 2:2 था, मतलब सेम था, तो देयरफॉर ये भी कितना रहेगा 20 मोलार रहेगा। देखो आंसर मेरा शॉर्टकट में आ गया, समझा मेरी बात, राइट। अब देखो ये रेशियो क्या है 1:2 है, 1:2। अगर ये 20 है तो O2 उसका हाफ है 1 है, तो इसका आंसर होना चाहिए 10 मोलार। ये देखो चेक करो, क्लियर हुआ। मैं भी एक न्यूमेरिकल दूंगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे लिए, राइट। देखो ये शॉर्टकट में एंट्रेंस का आ गया, ये थ्योरेटिकली आपको ऐसे सॉल्व करना है, थ्योरेटिकली आपको बोर्ड्स में ऐसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, आप मुझे सॉल्व करके दिखाना। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, अभी आप मुझे इसका आंसर बताओ। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, ये A फर्स्ट क्वेश्चन, ये B लेता हूं मैं। N2 + 3H2 बन रहा है अमोनिया 2NH3, ठीक है, बैलेंस करके मैंने दे दिया। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया का है 30 मोलार, ठीक है, मैं ऐसे नीचे लिखता हूं। आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, क्वेश्चन मांग रहा था। अभी तो स्मार्ट होने यार, समझ गए ना, अब ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन, अब इसका सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे इसका। चलो अभी आप खुद लिखो, स्टार्ट करो, लाइक इंटरेक्टिव लेक्चर पढ़ रहे हैं आप। इसका पहले मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, ठीक है, अमोनिया का 30 मोलार है, 1/d/dt के फॉर्मेट में लिखो, फिर मैं आपको साथ में पैरेलली लिख के हेल्प करूंगा। पहले आप लिखना चालू करो, हाँ पैरेलली लिखना आप चालू करो। फिर हम उसको एंट्रेंस वाला भी मेथड में प्रूव करके लेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, यही मेथड आपको अप्लाई करना है। ये आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक मेथड का, ये बोर्ड्स में आपको यही अप्लाई करना है। और ये आपका एंट्रेंस में सीधा मोल कॉन्सेप्ट मेथड। आपको चाहिए तो एंट्रेंस का पहले निकाल लो या फिर आप बोर्ड्स का पहले कर लो, वॉट एवर योर विश। फिर मैं यहाँ पर पैरेलली आपके लिए लिखना चालू कर देता हूँ। देखो अगर मैं पहले इसका रेट ऑफ रिएक्शन में लिखूं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, माइनस बैलेंस रहिए N2 1:2 तो 1/1 नहीं लिखा तो भी चलता है, d/dt ऑफ N2 इक्वल टू -1/3 d/dt ऑफ H2 इक्वल टू +1/2 d/dt ऑफ NH3, ठीक है, NH3 हो गया। चलो अब हम क्या करेंगे, पहला फर्स्ट पार्ट निकाल लेंगे, पहले कोरिलेट करेंगे। किसको कोरिलेट करेंगे, पहला हम लोग ये रिएक्टेंट को इससे कोरिलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ N2 विल बी इक्वल टू 1/2 d/dt ऑफ अमोनिया, ठीक है, d/dt ऑफ अमोनिया। अभी कुछ डालना तो है नहीं उधर, तो आप क्या करोगे, 1/2 अमोनिया का कितना है 30 मोलार है, तो कितना आंसर आ गया 15 मोलार। देखो पहला आंसर आपको N2 का 15 मोलार आना चाहिए, ठीक है। चलो सेकंड वाला करो, सेकंड वाला भी हाइड्रोजन को कोरिलेट करो, 1/3 d/dt ऑफ H2 विल बी इक्वल टू 1/2 d/dt ऑफ NH3, therefore d/dt ऑफ
H2 आपको निकालना है, तो 3 उधर जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अच्छा, d/dt ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 30 है, तो कितना हो गया ये 45 हो गया, 45 मोलार आंसर आ गया। तो देखो एक आंसर आपका 15 आया और दूसरे हाइड्रोजन का आंसर 45 आया। अच्छा, एक वर्ड याद रखना, हम लोग कभी भी बोलते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, तो हम लोग इसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना रिएक्टेंट के लिए कभी भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलना, डिसअपियरेंस, और प्रोडक्ट के लिए कभी भी बोलना रेट ऑफ अपियरेंस। और इसके लिए कभी भी हम लोग ये 1/3 नहीं लेते, तो ये जो है ना d/dt ऑफ हाइड्रोजन, ये आपका डिसअपियरेंस होगा, और अमोनिया d/dt ऑफ हो जाएगा। 1/2 नहीं लेने का डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में, तभी तो ये 3 हमने उधर डाला ना। डिसअपियरेंस मतलब ये नहीं था, डिसअपियरेंस ये था। मेरी बात समझ में आ रही है? डिसअपियरेंस, तो ये रिएक्टेंट के लिए और ये प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, एक एक्स्ट्रा स्टफ मैंने लिख दिया है यहां पर, मैंने एक एक्स्ट्रा स्टफ आपके लिए लिख के दिया है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। मोल्स नहीं लेना है, आई रिपीट, डिसअपियरेंस और अपीयरेंस। एग्जाम में ऐसे पूछेंगे, अभी यहां पर तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ दिया, एग्जाम में बोल के कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, मतलब आपको ये निकालना था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो 1/3 नहीं लेना, ये निकालना था, तभी तो मैंने 3 उधर डाला ना। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो सिर्फ d/dt ऑफ अमोनिया लेना। चलो अब एंट्रेंस वाला मेथड बताओ मुझे। एंट्रेंस वाले में N2 H2 और अमोनिया था, रेशो था 1:3:2 था, बराबर। तो अगर आपका 30 दिया हुआ था मैंने, ठीक है, अगर ये मैंने आपको अगर 30 दिया था, तो क्या कोरिलेट हो गया, ये देखो हाफ है, तो इसका 15 होना चाहिए मोलार। देखो 15 आंसर था मोलार। अरे शॉर्टकट समझ में आ रहा है मेरे भाई? ये देखो, फिर आप इसको ऐसे रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट भी पकड़ सकते हो, जरूरी नहीं आपको ये पकड़ना, ये भी पकड़ सकते हो। जब नाइट्रोजन आपका 1 था, तो हाइड्रोजन 3 टाइम्स यूज हो रहा था, नाइट्रोजन 1 टाइम यूज हो रहा था, तो हाइड्रोजन 3 टाइम्स यूज हो रहा था, मतलब 15 का 3 टाइम्स कितना यूज होगा, 45। ये देखो आ गया मोलारिटी में, शॉर्टकट में, एंट्रेंस में, जेई नीट का। फाइन, वेरी सिंपल, ब्यूटीफुल, हैप्पी। थ्योरी भी समझ में आया और आपको एंट्रेंस भी दे दिया गाइस। स्माइल करो यार, ठीक है, क्लियर, फाइन। और एक एग्जांपल एक मैं आपको दे दूंगा, आपको खुद ट्राई करोगे। So guys, we'll do some more reactions of numericals of rate of reaction, which is very important, and I'll be following your NCERT. See, the next question is very important one, third question. See, N2O5, in a very shortcut manner I'll write the question, okay. N2O5 is dissolved in CCl4, ठीक है, which follows the equation N2O5 will form 4NO2 plus O2, ठीक है। So N2O5 को हमने CCl4 में डिसॉल्व किया, तो it decomposes to form 4NO2 plus O2. Now initially the concentration of N2O5, ठीक है, initially the concentration में ऐसे लिख दूं चलेगा ना, ठीक है। The concentration of N2O5 is 2.33, concentration is moles per liter, and after 184 minutes, ठीक है, after 184 minutes it is reduced to 2.08. It is reduced to 2.08 moles per liter, ठीक है, moles per liter। एक्सप्लेनेशन करता हूं मैं आपको। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपके टेक्सचुअल का भी करता हूं और मैं एंट्रेंस का भी देता हूं। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स, minutes, seconds. What is the rate of production of NO2? Also you have to calculate rate of production of NO2.
rate of production of NO2. Okay. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोल रहा हूं मैं आपको? सो गाइस क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, N2O5 डिसोसिएट हो रहा है टू फॉर्म 4N2 + O2। इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2.33 थी, 184 मिनट्स के बाद रेड्यूस टू 2.08 हो गया। अब आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इन आवर्स, मिनट, सेकेंड्स, और प्रोडक्शन ऑफ NO2 भी निकालना है। लाइन से करते हैं आराम से, सम कोई घाई नहीं, ठीक है। देखो सोल्यूशन में हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन हम N2O5 का कैसा लिखेंगे याद करो, d/dt ऑफ N2O5 कॉन्सेंट्रेशन रेट ना, रेट ऑफ रिएक्शन 1/2 विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ NO2 1/4, और इधर हो जाएगा इक्वल टू d/dt ऑफ O2 कॉन्सेंट्रेशन प्लस में और ये माइनस में, ये रेट हो गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, अब N2O5 का हम निकालते हैं, ठीक है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देयरफॉर द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यही रहेगा ना, हमें N2O5 का वैल्यू जो था N2O5 का लेते, हाफ ऑफ ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इनिशियली 2.33 था, सो 2.33 माइनस कितना हो गया, 2.08 हो गया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर 184 मिनट्स, ठीक है ना, डिवाइड बाय 184 कर दूंगा, तो इसका वैल्यू आप मुझे निकालोगे आंसर, और 184 मिनट में आंसर है, तो जो भी आंसर आएगा आपका वो आएगा मोल्स पर लीटर पर मिनट में आएगा, -1 लिख देता हूं, ठीक है। ये पहला आंसर आपका आएगा मोल्स पर लीटर पर मिनट में आएगा। देख लो जो भी आएगा, अभी आंसर आपको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। 2 मिनट आप डिवीजन कर लो जरा, चलो पैरेलली स्टार्ट करो, डिवीजन करो, तो मैं आंसर बोर्ड पे लिखूंगा, सो दैट कि यू कैन यूज कैलसी ना फटाफट। तो 2.33 माइनस 2.08, ओ सॉरी बट एक मिस्टेक हो गया, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2.08, एक मिनट, अच्छा हो गया आंसर हमने नहीं निकाला, 2.08 माइनस 2.33 करेंगे, ठीक है। 2.08 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय 184, बराबर है बाकी का। चलो तो 2.08 माइनस 2.33 डिवाइड बाय 184 मिनट्स, कितना आ रहा है पर मिनट में आंसर, आपका आंसर आएगा 6.79, पहला आंसर आएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, ठीक है। ये मोल्स पर लीटर पर मिनट में आएगा आंसर, समझ में आ रहा है गाइस। अच्छा, अगर यही आंसर मुझे पर आवर में निकालना है, देखो यू नो वेरी वेल 1 आवर इज 60 मिनट्स, इतना तो पता है आपको। अब आपको कितना निकालना, पर आवर में निकालना है, तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, देखो 1 आवर 60 मिनट है, मतलब 60 मिनट क्या होता है, 60 मिनट पर आवर हो गया, बराबर है ना, 60 मिनट पर आवर हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो 6.79 इंटू 10⁻⁻4 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करूंगा, तो देखो ये कैसा हो जाएगा, मोल्स पर लीटर पर मिनट था, तो ये 60 मिनट्स पर आवर हो गया। देखो तो मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पर आवर में आ जाएगा ना। तो इसका आंसर आप मुझे फाइनली निकालोगे पर आवर में, जो भी आएगा, तो इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा मोल पर लीटर पर आवर, ठीक है ना। अरे भाई 1 आवर 60 मिनट से ना, तो 60 मिनट पर आवर हुआ ना, तो मिनट कैंसिल कैसे होगा, जब हम उसको डिवाइड बाय पर आवर करेंगे, ठीक है। ये निकाल लेना आंसर। अच्छा, यही मिनट अगर आपको 6 सेकेंड्स में करना है, तो यू नो वेरी वेल 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, ठीक है। तो पर सेकेंड करना है ना, पर सेकेंड करना है आपको, तो पर सेकेंड करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 करेंगे ना, पर सेकेंड करने के लिए 1 मिनट विल बी 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू 1 मिनट पर 60 सेकेंड्स। देखो अभी जो आंसर आया मिनट में, किधर गया आपका आंसर, ये तो हम निकाल लेंगे, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। अब तीसरा आंसर कैसे निकालेंगे हम, 6.79 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ये क्या था आपका मोल, एक मिनट मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्या था आपका, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट, और आपको 60 सेकेंड्स में करना है ना, तो इसको मैं ये देखो डिवाइड बाय 60 सेकेंड्स कर दूंगा, तो ये मिनट पर 60 सेकेंड्स हो जाएगा।
तो मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना रहेगा, इसको जो भी रहेगा उसको डिवाइड बाय 60 से, सॉरी इसको डिवाइड बाय 60 से आपको करना है, जो भी है आपको डिवाइड बाय 60 से करना है। ठीक है, तो इसका आपका फाइनल आंसर इधर आ जाएगा। कैमरा थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये आपका तीसरा फाइनल आंसर आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, ये तीसरा आंसर। गॉट इट क्लियर? एक बार वापस बता दूं मैं, देखो मैंने पहले रेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय 184 किया, और ये 1/2 था इसलिए मैंने 2 लिखा, तो मुझे पहला आंसर 6.79 इंटू 10⁻⁻4 आ गया। ठीक है, तो मैं जो पहला आंसर 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट में आया। अब इसी को अगर मुझे पर आवर में करना था तो 1 आवर 60 मिनट्स होता है, तो मिनट कैंसिल करने के लिए डिवाइड बाय पर आवर हो गया, तो 1 आवर इज 60 पर मिनट हो गया। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में था ना, तो मल्टीप्लाई बाय 60 मैंने कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, तो जो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आप निकाल लीजिए, पर आवर में कितना आ रहा है, 4.07 इंटू 10⁻², 4.07 इंटू 10⁻²। ये मैं इधर लिख देता हूं ANS। और देखो फिर इसी मोल पर लीटर पर मिनट को अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूं तो पर सेकंड करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर देता हूं। डिवाइड बाय 60 कर दिया तो कितना हो जाएगा आंसर में, इसका आता है 1.13 इंटू 10⁻⁻5। तो देखो ये 3 आंसर आपका रेडी हो रहा है इधर, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, ये तीसरा आंसर। ठीक है, ऐसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको मेरे लिए करना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। देख लो, अभी तक हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकालना है। ठीक है ना, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकालना है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 कैसा होगा, ये देखो इधर, ये देखो ये है ना रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 टाइम्स d/dt ऑफ NO2 बराबर। अब देयरफॉर प्रोडक्शन, याद है मैंने बोला था अपीयरेंस ऑफ NO2, सो देयरफॉर अगर मैं बात करूंगा कि d/dt हो गया ना ये, अगर मैं बात करूंगा कि अगर मुझे देयरफॉर d/dt ऑफ NO2 निकालना है, जो कि आपका प्रोडक्शन ऑफ NO2 है, ये क्या होगा, 4 टाइम्स रेट हो जाएगा। तो 4 टाइम्स रेट क्या है, ये पकड़ लो ना पर मिनट का, 6.79 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई करके निकालना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.72 इंटू 10⁻3, 2.72 इंटू 10⁻3 मोल्स पर लीटर पर मिनट में हमने निकालना। ये आपका हो गया ANS। अरे भाई रेट ये तीनों के लिए होता है ना, तो इसका रेट क्या रहेगा, 1/4 टाइम्स रहेगा। अब मुझे इसका अपीयरेंस निकालना है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने रेट के साथ, डायरेक्ट मिल गया आंसर। ठीक है, चलो कॉपी डाउन दिस मच, देन फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको वो करना पड़ेगा, एंड देन फिर हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, क्वेश्चन 2 क्या रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकंड मैं आपके लिए लिख देता हूं। एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट बन रहा है, R से P बन रहा है, प्रोडक्ट। ठीक है, concentration changes from 0.03, concentration of reactant changes from 0.03 to 0.02 molar in 25 minutes। ठीक है, बस एक सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट एवरेज rate of reaction in minutes and seconds। दो आंसर निकालना है, ANS। ठीक है ना, एक रिएक्टेंट एक सिंपल जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है 0.03 से 0.02 मोलार हो रहा है इन 25 मिनट्स। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन मिनट्स एंड इन सेकेंड्स। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन मिनट्स एंड इन सेकेंड्स में करना है। आप लोग निकालो, चलो तैयारी करो उसका, रिएक्टेंट का कैसे करोगे। और RP बन रहा है, कोई रिएक्शन का इसमें सिंपल दिया हुआ है,
इसमें तो कोई आपका ये आएगा नहीं फिर रिएक्शन में, क्योंकि आरपी बन रहा है। तो इसका खाली मैं रेट आपको हेल्प कर देता हूँ लिखने के लिए। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? रेट रहेगा आपका d/dt ऑफ r कॉन्सेंट्रेशन 1/1, क्योंकि कोई मोल्स ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। माइनस प्लस की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। चलो तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो, करो अपने आप। चलो सो गाइस द रेट विल बी d/dt ऑफ r। तो इनिशियल 0.03 था, फाइनली 0.02 हुआ, तो 0.03 माइनस 0.02 फ्रॉम दिस टू दिस इन 25 मिनट्स। तो डिवाइड बाय टाइम किया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मोल्स पर लीटर पर मिनट। तो 0.03 माइनस 0.02 इज 0.01 डिवाइड बाय 25 विल बी 0.0004 मोल्स पर लीटर पर मिनट हो गया, बराबर। ये आपका आंसर आ गया मोल्स पर लीटर पर मिनट। अच्छा, अब मुझे चाहिए मोल्स पर लीटर पर सेकंड में। अभी हमने किया था पर सेकंड में, करने के लिए क्या करूंगा? 0.0004 जो है डिवाइड बाय 60 करूंगा। चलो निकालो इसका आंसर, क्या हो जाएगा? 60 करूंगा डिवाइड, तो इसका आंसर आना चाहिए 6.66 इंटू 10⁻⁻⁶। ये देखो, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। एक मोल्स पर लीटर में पर मिनट और एक मोल्स पर लीटर पर सेकंड में मैंने कन्वर्ट करके निकाला, ठीक है। वेरी सिंपल सम। देखो इसी टाइप के सम्स आते हैं, एंट्रेंस में भी सिंपल नंबर रहेगा तो विल बी एबल टू सॉल्व। एक सम देता हूं, आप उसको मेरे को निकाल के आंसर बताइए इसका। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। एक रिएक्शन बन रहा है, 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इसका पिक भी मुझे भेजना है, तो मैं एक काम करता हूं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, मैं बाद में देता हूं, पहले आप ये कॉपी कर लो, पूरा लिख लो, इसका मेरे को पिक लेना रहेगा। फिर रिएक्शन देता हूं, 2A बन रहा है प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.4, ठीक है। एक शॉर्टकट में लिख दूं क्या मैं यहां पर? ठीक है, एक सेकंड ना, मैं एडजस्ट करता हूं तो ये नीचे का दिख जाएगा। स्पेस है थोड़ा, नीचे लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है। देखो आपका एक क्वेश्चन इधर मैं क्या लिख रहा हूं, एक सिंपल देता हूं तरीके से। 2A बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A changes from 0.5 to 0.4, ठीक है। ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, 0.5 से 0.4 हो रहा है इन 10 मिनट्स। इन 10 मिनट्स में यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बस आपको मेरे लिए खाली एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है क्वेश्चन के लिए। एक 2A बन रहा है प्रोडक्ट, ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है 0.5 से 0.4, तो आपको मुझे लेकिन 10 मिनट्स में आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अपने आप करो। देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना रहेगा तो उसका रेट क्या रहेगा, खाली बाकी का आप आंसर निकाल लोगे, फिर मैं पिक में दूंगा। आप इसका रेट निकालोगे जो वो रहेगा 1/2 d/dt ऑफ A, ठीक है। ये की था 1/2 d/dt ऑफ A, तो 0.5 से 0.4 हो रहा है इन 10 मिनट्स। करो अपने आप, चलो 0.5 माइनस 0.4 डिवाइड बाय 10 में, और कुछ नहीं, सिर्फ मोल्स पर लीटर पर मिनट में ही निकालना है, कुछ सेकंड्स नहीं, कुछ आवर्स में नहीं। फिर मैं आपको इसका जो पिक दूंगा उसमें इसका आंसर रहेगा, या आप खुद ही निकाल सकते हो। मोल्स पर लीटर पर मिनट 1/2 की लिया हो क्योंकि 2A था रिएक्टेंट में, यहां पर सिर्फ रिएक्टेंट R था तो मैंने 1/1 लिया, यहां पर 2A था तो ये 1/2 आएगा, और सिर्फ एवरेज रेट निकालना है बस। चेक करो गाइस, निकालो आंसर, खुद सॉल्व करो, खुद निकालो आंसर। आंसर मैं खाली आपके लिए लिख के दूंगा। इसका आंसर आएगा 0.005, ये इसका आंसर रहेगा। ANS 0.005 रहेगा इसका आंसर। मेथड आपको पता ही है, आप आंसर निकाल लीजिएगा। समझ में आ रहा है गाइस? तो ये पूरा देखो, अगर आप देखोगे कंटेंट, अगर आप देखोगे, लिख लिया आपने, अगर आप ये पूरा कंटेंट देखोगे, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ये पूरा कंटेंट आपका था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में। आई थिंक ऑल द न्यूमेरिकल्स आर प्रीटी क्लियर टू यू। कैसे निकाला? सब d/dt के फॉर्मेट में मैंने अप्लाई किया और निकाला है मैंने। देखो सब d/dt का फॉर्मेट अप्लाई किया है, चेक करो, सब d/dt का फॉर्मेट अप्लाई किया। एक बार एक रेट आ गया तो आप ये भी निकाल सकते हैं। अगर O2 का पूछते तो O2 का भी हम निकाल सकते थे, जैसे ये फॉर्मेट में निकाला। अगेन मैंने बोला डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस, रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस, प्रोडक्ट का अपीयरेंस, ठीक है। So guys, we will do last sum of your rate of the reaction, a very important sum because there are 4-5 datas are given. So we'll solve this sum and very important to concentrate. This is the last numerical of your rate of reaction के लिए,
ठीक है. So the question says that in a very short manner I'll give you the question. So the equation is 2NO2 nitrogen dioxide decomposes to form 2NO plus O2. ठीक है, NO2 decomposes to form 2NO plus O2. The concentration of consumption of NO2. ठीक है, the concentration of decomposition of NO2 as given as follows. See, there will be data of time per second and concentration is in per molar. ठीक है, NO2 का. तो it is 0, 100, 200, 300. So it is 8.4 into 10 raised to minus 3, 5.6 into 10 raised to minus 3, 4.3 into 10 raised to minus 3, and 3.0 into 10 raised to minus 3. 8.4 into 10 raised to minus 3. ठीक है, सब वैल्यूज दे दिया मैंने. अच्छा, अभी आपको क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट. देखो अभी हमारा मेथड आ जाएगा. यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, disappearance of NO and O2 and disappearance of NO2 and appearance of NO and O2 between time interval of 200 to 300 seconds. Also calculate the average rate of reaction for all. ठीक है, सोल्यूशन हम निकालने की कोशिश करेंगे. समझ में आया मैंने क्या बोला? क्वेश्चन सेज दैट, देखो एक क्वेश्चन है, NO2 बन रहा है, 2NO plus O2 बन रहा है. उसकी डिकम्पोजिशन ये है, देखो एट टाइम पे और कॉन्सेंट्रेशन. जब 0 टाइम था तो इतना है, 100 पे इतना है, 200 पे इतना है, मैं वैल्यूज को अंडरलाइन कर देता हूं. ठीक है, और 300 सेकेंड्स पे इतने हैं सेकेंड्स में. You have to calculate disappearance of NO2 and appearance of NO and O2. See the language between 200 and 300 seconds. कोई भी सेकेंड्स ले सकते हैं और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. ठीक है, अच्छा चलो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखूंगा. द रेट ऑफ रिएक्शन का हम कैसे फॉर्मूला लिखते थे? कम ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला कैसे लिखते थे? D by dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 1/2. ठीक है, विच इज इक्वल टू D by dt of concentration of NO 1/2 and D by dt of concentration of NO2. अच्छा, कोई बुक्स में ये D by dt को उन्होंने डेल्टा फॉर्मेट में भी लिखा है. ठीक है, डेल्टा बाय डेल्टा टी भी लिखते हैं, तो ये भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस ये प्लस और ये फॉर्मेशन में इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, अच्छा अभी आपको मैंने क्या बोला था, जब आपको कभी भी पूछे डिसअपियरेंस तो तभी मोल्स नहीं लेना है. याद है आपको? तो मैं सबसे पहला वैल्यू निकालूंगा, फर्स्ट वन वैल्यू निकालूंगा, मैं डिसअपियरेंस निकालूंगा. सो डिसअपियरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2. ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको लेना है D by dt ऑफ NO2 लेना है. डिसअपियरेंस बिटवीन 200 to 300 सेकेंड. सो 200 to 300 सेकेंड्स में कैसा हो जाएगा, आपको माइनस करोगे, डेटा डालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना है 3 into 10 raised to minus 3 minus 4.3 into 10 raised to minus 3 divide by 300 minus 200. ठीक है, आप इसका आंसर निकालोगे वॉट एवर इन मोलार पर सेकेंड. जो भी आंसर आएगा वो आपका आएगा इन मोलार पर सेकेंड में आएगा. मेरी बात समझ में आई? ये देखो, ये आपका डिसअपियरेंस का हो गया अभी. ठीक है, अब हम निकालेंगे दूसरा अपीयरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO. वो भी क्या हो जाएगा, D by dt ऑफ NO खाली होगा, मोल्स नहीं लेना है, मैं आपको बोल रहा हूं. वो भी क्या रहेगा, D by dt ऑफ NO. सेम ही रहेगा ना. अब दोनों सेम है तो दोबारा क्यों कैलकुलेट करें, जो आंसर वो आएगा वही आंसर इधर आ जाएगा, सेम रहेगा ये वैल्यू, तो सेम आंसर आपका आएगा मोल्स पर सेकेंड में. ठीक है, तीसरा मैं निकालूंगा अपीयरेंस. अगेन अभी चाहिए आपको अपीयरेंस ऑफ O2 चाहिए,
तो अच्छा वो क्या रहेगा आपका, ये रहेगा डी बाई डी टी ऑफ NO2। लेकिन देखो अभी आपको क्या बोल रहा हूँ, डिसअपियरेंस बोल रहा हूँ, अपियर हो रहा है। अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ O2 बात करेंगे। देखो जब NO2 आपका 1/2 टाइम्स कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, ये अगर 2 टाइम, इसका रेशियो क्या है, 2:2:1 है, बराबर है। तो अगर मैं इसको 1 टाइम करता हूं, 1 टाइम, अभी देखो एक सिंपल बताता हूं, NO2 था, NO था और O2 लिया था, ये था कितना, 2:2:1 था, बराबर, रेशियो में ऐसा था। अब हम इसको 1 लिए, अगर इसको मैं 1:1 करूंगा तो इसको 2 करना पड़ेगा ना, रेशियो तो कभी चेंज नहीं होता है। मेरी बात समझ में आई, 2:2:1 था ये ओरिजिनल, बट हमने अगर इसको 1:1 लिया है तो इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, बिकॉज रेशियो में डिवाइड बाय टू करिए तो हाफ टाइम हो जाएगा ना। तो जब भी अगर ये अगर इसको मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो ये 1/2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब O2 कितना होगा, हाफ टाइम अपीयर हो रहा है, तो यहां पर ये हाफ आएगा। समझ में आया ये क्यों हाफ आया, वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, हमने d/dt क्या लिया, हमने डिसअपियरेंस के लिए NO2 खाली लिया, तो NO2 2 टाइम्स डिसअपियर होता है, लेकिन इसको अगर 1 टाइम ले रहा हो, NO को भी अगर 1 टाइम ले रहा तो O2 फिर हाफ टाइम अपीयर होना चाहिए ना, क्योंकि रेशियो में मोल कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना है। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको इधर दे रहा हूं। तो हाफ टाइम होगा, मतलब जो भी आंसर आपका इधर आएगा, राइट, जो भी आंसर आपका इधर आएगा मेथड करके, मतलब अभी ये वैल्यू अगर जो आपको लिखना पड़ेगा 1.3 वाला, जो भी वैल्यू इधर आएगा उसको डिवाइड बाय आपको 2 करना पड़ेगा, तब जाके अपने को फाइनल आंसर मोलार पर सेकंड में आएगा, ठीक है। तब इसका हम फाइनल आंसर निकालने की पहले इसको कोशिश करेंगे। देखो 10⁻³ कॉमन लो, 3 - 4.3, 1.3 डिवाइड बाय 100 हो गया। 100 को अगर ऊपर ले लेंगे तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, बराबर। ये हो जाएगा 1.3 × 10⁻⁻5, सीधा ओरली हो रहा है, 2 0 ऊपर चला गया, तो ये भी 1.3 × 10⁻⁻5 था। अब ये क्या था, 1.3 × 10⁻⁻5 का डिवाइड बाय 2 करो, तो 2 6 12, 2 5 10 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, -6, ठीक है ना, एक वैल्यू उधर चला जाएगा। तो देखो ये O2 का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये O2 का वैल्यू आ गया, हमने रेशियो को लिया हुआ है। अच्छा, फिर अब ये लास्ट पार्ट आपका आ जाएगा, फोर्थ वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अब एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगा सबके लिए, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन ये वाला रहेगा जो हमने लिखा है, ये देखो, ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। तो ये जो है वैल्यू ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हाफ ऑफ d/dt ऑफ NO2 है, मतलब जो d/dt ऑफ NO2 आया हुआ है उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, बराबर ना, यही है ना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दोबारा मैं नहीं लिखूंगा, समझ में आ रहा है मेरे, राइट। तो d/dt ऑफ NO2 मतलब हाफ ऑफ दैट, मतलब इसका हाफ करने का है, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा आंसर, NO2 का भी 6.5 × 10⁻⁻6 आएगा। अच्छा, इसका भी क्या आएगा, 6.5 × 10⁻⁻6। अच्छा, d/dt ऑफ O2 क्या आएगा, d/dt ऑफ O2 रहेगा, मतलब d/dt जो हाफ किया था वैल्यू में उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर 6.5 ही आने वाला है, यही रहेगा ना आपका, 6.5 ही रहेगा, ठीक है। मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 6.5 × 10⁻⁻6 मोलार पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है। मेरी बात समझ में आई। अच्छा, अगर आपको प्रूव करना है तो देखो मैं आपको अभी प्रूव करके दे सकता हूं। देखो अभी NO2 का कितना आया, 1.3 आया, 1.3 × 10⁻, मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ये देखो ये वाला मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, 1.3 × 10⁻³ है। तो जब NO2 1 था तो इसकी भी रेशो कितनी थी, 2:2 था ना, समझो, अगर 2:2 पकड़ो या 1:1 पकड़ो, तो अगर ये 1.3 तो इसकी भी वैल्यू 1.3 × 10⁻³ आनी चाहिए, तो देखो दोनों आंसर सेम है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, O2 हाफ टाइम होगा, तो 1.3 × 10⁻³ का हाफ कितना होगा, 6.5 × 10⁻6, देखो, राइट। तीनों के कॉन्सेंट्रेशन के रेट अलग अलग है, एवरेज सबके लिए सेम रहेगा, एवरेज कभी चेंज नहीं होता है। तो देखो हाफ ऑफ d/dt ऑफ NO2 मतलब यही हो गया, इसका हाफ करूंगा, ये भी अगर d/dt ऑफ अगर हमने निकाला था NO का तो हाफ टाइम इसका वापस डिवाइड बाय 2 करोगे,
और ये ऑलरेडी हमने हाफ किया था, लेकिन ये हाफ नहीं होना चाहिए। हाफ नहीं होना चाहिए मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय अगर 2 करता हूं 1.3 इंटू 10⁻⁵ का तो राइट, तो ये 6.5 ही आने वाला है। गॉट इट वेरी क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट सम। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने क्या दिया हुआ है। ये आपके थ्योरेटिकली एनसीईआरटी का थियोरी में सम्स आता है बोर्ड्स में, इसलिए बोर्ड्स फॉर्मेट में मैं आपको दे रहा हूं। चेक करो प्लीज, मेक ए नोट ऑफ इट प्लीज। So now guys, we'll complete this rate of reaction by ending one part of this lecture. Types of rate of reaction. Okay, very important. Types of rate of reaction. Now what are the types of rate of reaction? See two. First one is average rate of reaction. I have just now explained to you in my numerical. Average rate of reaction. It is physically related. Okay, average rate of reaction. And second one is instantaneous. Instantaneous rate of reaction. Okay, one is average rate of reaction, one is instantaneous rate of reaction. Now I'll explain to you in a very simple example. First understand, average rate of reaction will be same, the definition will remain the same. It is a change in concentration of reactant or product per unit time. Okay, it is a change in concentration of reactant or product per यूनिट टाइम। एंड इंस्टेंटेनियस के लिए रहेगा इट इज अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट मैं समझाता हूं मीनिंग में। तो पहले ये जो डेफिनेशन का जो दिमाग में रखो, इट इज अ एवरेज रेट पर यूनिट टाइम, इट इज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं हाइपोथेटिकली एंड एक्सप्लेन। सपोज I am going from point A to point B. एक डेस्टिनेशन में मुझे जाना है, A से B में जाना है। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले मैंने 10 किलोमीटर कवर किया 1 आवर में गाड़ी ड्राइव करके। फिर अनदर 10 किलोमीटर्स मैंने कवर किया 1 आवर में, एंड फाइनल 10 किलोमीटर्स कवर किया 1 आवर में। ठीक है, मैंने 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया, फिर 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया, फिर 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया। तो मेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे आप? हम गाड़ी का एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? द एवरेज स्पीड विल बी, हम कैसे निकालेंगे? 10 10 10 30 डिवाइड बाय 3, मतलब मेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड रहेगी 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रफ्तार से अगर गाड़ी चलाऊंगा तो मैं डेस्टिनेशन बी पे पहुंच जाऊंगा। यही होता है ना एवरेज स्पीड ऑफ द कार। हम लोग मेंटेन करते ना, गाड़ी के कांटे पे मेंटेन करते किलोमीटर माइल्स में, इतना आपका किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड रहेगा। अच्छा, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड के हिसाब से यहां पर आधे घंटे में, मतलब हाफ एन आवर में अगर मैं बात करूंगा तो 5 किलोमीटर कवर होना चाहिए। अगर मैं 1.5 घंटे में बात करूंगा, 1.5 आवर में बात करूंगा तो 15 किलोमीटर कवर होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हाफ एन आवर में 5 किलोमीटर ही एग्जैक्ट कवर होगा, 1.5 घंटे में एग्जैक्ट 15 किलोमीटर कवर होगा? नो। व्हाई? बिकॉज सर्टन फैक्टर्स विल कम, फैक्टर्स विल प्ले। कैसे फैक्टर्स? इनिशियली समझो मैं गाड़ी चला तो ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक सिग्नल लाइट हो गया, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे। ठीक है, सो इनिशियली मेरे गाड़ी का स्पीड कुछ भी कम ज्यादा हो सकता है। ऐसे जरूरी नहीं कि, मेरी बात समझ में आ रही है, जरूरी है कि हाफ एन आवर में 5 किलोमीटर कवर होगा। 4 किलोमीटर भी तो हो सकता है, 4.9 भी हो सकता है, 5.1 हो सकता है। मैं आगे जाके उसको मेंटेन कर लूंगा अगर मुझे रास्ता खाली मिलेगा। हाईवे पे हम यही करते हैं, बराबर है। अब हम घर से गाड़ी निकालते तो एकदम स्पीड में नहीं निकालते हम, राइट? स्पीड ब्रेकर्स होता है, सिग्नल्स होता है, ट्रैफिक होता है। फिर हम जब हाईवे पे रहता है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे एवरेज स्पीड मेंटेन रहे हमारी गाड़ी का। सो व्हाट वी से, द इंस्टेंटेनियस विल बी व्हाट, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर हम बात करेंगे तो मुझे टाइम को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त पे कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो अभी आपका लेक्चर अगर हम बात करेंगे पूरे 1 घंटे का है, बट इंस्टेंटेनियसली अब मैं यहां पर हूं, आधे घंटे के बाद मेरा पोजीशन कहीं और रहेगा, बट एवरेज क्या लूंगा मैं? 1 घंटे का लेक्चर लिया मैंने, सिंपल। सो माय डियर, मैं क्या ट्राई करने की एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब हम एवरेज स्पीड लिखते तो हम 10 किलोमीटर पर आवर लिखते, लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस लिखेंगे ना, अगर हम इंस्टेंटेनियस बोलेंगे तो दैट टाइम टाइम टेंड्स टू 0। याद आया? लिमिट्स बात करेंगे। टाइम घड़ी 0 नहीं हो गया है, वी अज्यूम दैट टाइम टेंड्स टू 0। तो पूरा का पूरा फैक्टर किसके ऊपर रहेगा? किलोमीटर पे रहेगा। ये फिजिक्स का एस्पेक्ट हुआ। सेम थिंग इफ आई अप्लाई इन द कॉन्सेंट्रेशन वाइज।
ठीक है। जब हम अगर थिंग में अप्लाई करूंगा इन द कॉन्सेंट्रेशन वाइज, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन लेता हूं तो एवरेज का कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया था एट पर्टिकुलर टाइम 200 to 300 सेकेंड, अभी एक न्यूमेरिकल किया था। लेकिन इंस्टेंटेनियस उस वक्त पे कुछ भी हो सकता है, दैट टाइम टाइम विल बी टेकन एज 0। तो ग्राफिकली कैसे होगा, इधर देखो मैं आपको समझाता हूं एवरेज और इंस्टेंटेनियस का। अगर मैंने एक ग्राफ बनाया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट CR वर्सेस टाइम का, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का मैंने अगर ग्राफ बनाया, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का, तो कैसे ग्राफ आएगा, ग्राफ आपका CR का ऐसे आने वाला है, बराबर है, या आपका ऐसे ग्राफ आएगा, डिक्रीज होगा ना CR का। अच्छा सपोज, तो फिर कैसे लूंगा मैं इसको, अगर मैं एवरेज बात करूंगा तो आई विल टेक इट लाइक दिस। हम ऐसे निकालते ना ग्राफिकली, अगर आपको याद होगा तो ग्राफिकली हम लोग ऐसे निकालते, मतलब लेट से ये T1 पे और ये T2 पे, ये X1 पे और ये X2 पे, बराबर, T1 T2 X1 X2। तो जो इसकी एवरेज रेट रहेगी, एवरेज रेट की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता है d/dt और CR होता है माइनस में, मतलब कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, X2 माइनस X1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, बराबर, ऐसे एवरेज रेट आपका निकलेगा। फाइन, दो वैल्यू को माइनस करो, डिवाइड बाय टाइम करो। अच्छा, अगर आपको यही चीज अगर आपको इंस्टेंटेनियस पे निकालना है, इंस्टेंटेनियस पे, तो आप क्या निकालोगे, माइनस d/dt ऑफ जो CR रहेगा वहां पर आप लिखोगे टाइम टेंड्स टू 0। चेक करो क्या लिख रहा हूं मैं। और इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा, अब तो वैल्यू आपको नहीं लेना पड़ेगा X2 X1, यू नो वी ड्रॉ टेंजेंट, स्लोप बनाते हैं हम लोग। इफ यू रिमेंबर हम लोग ऐसे स्लोप बनाएंगे, देखो स्लोप बना के निकालेंगे। अगर मुझे बनाना है, सपोज मुझे अगर ये पॉइंट पे निकालना है तो मैं ऐसे एक स्लोप बनाऊंगा और इधर आपका इंस्टेंटेनियस बन के रेडी हो जाएगा, इस स्लोप पे टेंजेंट बन के रेडी हो जाएगा। तो हम लोग टेंजेंट बनाएंगे एक स्लोप, नहीं विजिबल है क्या, क्लियर, थोड़ा बड़ा बना दूं टेंजेंट, ठीक है, देखो टेंजेंट बना दिया मैंने स्लोप। तो इंस्टेंटेनियस ऐसे निकलता है आपका CR का ग्राफ में, ठीक है। अगर मुझे यही ग्राफ, अगर मुझे अभी प्रोडक्ट्स का बनाना है, सेम डिटो, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो अगर मैं सेम ग्राफ CP का बनाता हूं, प्रोडक्ट का वर्सेस टाइम का, CP का ग्राफ बनाता हूं, दिख रहा है ना, देखो CP का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ये ऐसे रहेगा ग्राफ में, ठीक है। सेम वैल्यू आप लोगे, प्रोडक्ट जब ऊपर जाएगा तो लेट से मैं इसको ऐसे लेता हूं और एक वैल्यू को मैं ऐसे ले लेता हूं, आर्बिट्री कुछ भी पकड़ रहा हूं मैं, ठीक है। ये T1 T2, ये X1 X2। तो इसकी एवरेज रेट कैसी रहेगी, एवरेज रेट आपका होता है मालूम है प्लस में d/dt ऑफ CP, बराबर। और अगर यही मुझे आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है तो d/dt ऑफ CP रहेगा t टेंड्स टू 0, ये आपका इंस्टेंटेनियस में आएगा। अच्छा, अभी भी अगर समझो मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है, सपोज ये पॉइंट पे मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा इंस्टेंटेनियस, ये पॉइंट पे वही स्लोप बनाऊंगा टेंजेंट, देखो ठीक है, स्लोप बना दिया। सपोज ये पॉइंट पे मुझे ये इंस्टेंट पे निकालना है, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस निकल के इधर आ जाएगा आराम से। टेंजेंट बना, किधर भी निकालना है आपको, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ तो आपका इंस्टेंटेनियस बन के रेडी हो जाएगा। समझ में आया गाइस, देखो तो CR एंड CP का। और आपको मालूम है कौन सा रेट का यूनिट, अगर मैं रेट की यूनिट बात करूंगा तो इट विल बी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। और अगर यही गैस में रहेगा ना, गैसियस के लिए, फॉर गैस के लिए इट इज ATM पर सेकेंड, ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट, ATM पर सेकेंड, यूनिट बात कर रहा हूं, यूनिट ऑफ रेट, ठीक है। ATM पर सेकेंड देगा और एक मोल्स पर लीटर पर सेकेंड देगा, क्योंकि आपको पता है ना पार्शियल प्रेशर पे होता है, गैसेस कभी भी पार्शियल प्रेशर पे है। तो देखो ये पूरे फैक्टर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए इन द टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है?
देखो मैंने कैसा एक्सप्लेन कर दिया, देख लो वेरी सिंपल मैनर में। एक होता है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, गाड़ी की स्पीड हम एवरेज निकालते हैं फाइनल और इनिशियल को सिर्फ मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेट करके, ठीक है, वी ट्राई टू, राइट। तो फाइनल हमने निकाल दिया ऐसे करके पर किलोमीटर। अब इंस्टेंटेनियस कैसा होगा, पर्टिकुलर इंस्टेंट में टाइम को इग्नोर करना, टाइम को टेंड्स टू 0 लेना है। तो देखो मैंने एक हाइपोथेटिकल फिजिक्स का एग्जांपल दिया, फिर मैंने ये बताया जब आप सीआर का ग्राफ बनाते हो तो ये पूरी एवरेज निकलेगी, बट इंस्टेंटेनियस के लिए आप टेंजेंट बनाएंगे। सेम सीपी के लिए ये एवरेज रहेगा और इंस्टेंटेनियस टेंजेंट मिलेगा, तो टाइम टेंड्स टू 0, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1 सेम रहेगा। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है, खाली प्लस में जाएगा आपका, ठीक है, स्लोप आपका प्लस में चला जाएगा। Am I clear with this? आपको तो पता है ना, ऐसे बना लोगे टेंजेंट में, ऐसे बना लोगे और इसको ऐसे कर लोगे तो आपका कंप्लीटली स्लोप भी बन के रेडी हो जाएगा। सो हियर गाइस आई हैव कंप्लीटेड द केमिकल काइनेटिक्स का वेरी फर्स्ट मेजर पार्ट। मैंने स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स से, इट डील्स विद द स्पीड, रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड द मैकेनिज्म। अब तो वो हम बाद में आएंगे। फिर मैंने उसके बाद शुरुआत करने के बाद मैंने बोला सीआर एंड सीपी दिया, सीआर कम होते जाएगा, सीपी बढ़ता जाएगा एज पर टाइम। फिर मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया, d/dt के फॉर्मेट में लिखने का, रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस, और हमेशा मोल्स को 1 लिखने का। और मैंने वो प्रूव करके भी दे दिया एज पर मोल कॉन्सेप्ट हिसाब से, रेशियो वाइज कैसे प्रूव होता है वो भी मैंने आपको दे दिया। इज इट वेरी क्लियर टू यू? रेशियो वाइज कैसे मैंने प्रूव करके दिया है, तो उस हिसाब से आप रेशियो वाइज उसको लिखोगे। न्यूमेरिकल्स भी मैंने बहुत सारे किए, टेक्सचुअल के भी, थियोरी के भी न्यूमेरिकल्स मैंने करके आपको दिए। अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के वर्ड में 1 नहीं लेने का, डायरेक्ट निकालने का, एवरेज में लेने का। एक लास्ट न्यूमेरिकल मैंने अभी आज आपको एक्सप्लेन करके वापस दिया मैंने, राइट। देन आफ्टर दैट आई वेंट टू द टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा। तो हियर वी कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। मैंने न्यूमेरिकल भी कर दिया है, आपको पिक भी साथ में भेज दूंगा, न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कर लेना। वैसे तो मैंने सारे न्यूमेरिकल्स आपको करके देने वाला लेक्चर में, ठीक है, और बीच बीच में थोड़े मैं एमसीक्यूज के क्वेश्चन डालते रहूंगा। नाउ सेकंड लेक्चर विच आई एम गोइंग टू सेंड यू द वीडियो, जब आप मेरा देखोगे सेकंड लेक्चर का वीडियो, दैट विल बी वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं रेट लॉ पढ़ाने वाला हूँ। आपको याद होगा, थोड़ा हिंट देता हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, KCKP करके पढ़ा था, थोड़ा उसको रिवाइज करके रखना। लॉ ऑफ मास एक्शन पूरा रेट लॉ में आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स दूंगा, जेईई मेंस नीट के अच्छे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आने वाले। सो गाइस कंप्लीट दिस पार्ट, एंड इफ एनी डाउट एनीथिंग, टेक योर डाउट्स एंड एवरीथिंग एंड लेट मी नो, देन विल स्टार्ट पैरेलली विद द न्यूमेरिकल्स आल्सो। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। कुछ भी डाउट्स उसको जॉट डाउन करके रखो और मुझे बाद में पूछ लेना क्या रहेगा, ठीक है गाइस। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो, विल कम वेरी शॉर्टली, ओके, बाय, टेक केयर, राइट, हैव अ नाइस डे, बाय गाइस।